हम पोस्टर पहले देखेंगे। टीम 1, राइट? ये था ना टीम 1, 3, हाँ हाँ 3, ओके। सो लेट्स डू टीम 1 फर्स्ट। कौन कौन लेके आ रहा है? लीडर ले लिया, सब ले लिया। देखो उसमें है तो नहीं, और तो नहीं है उसमें? है क्या और भी? Just presentation should be in 1 minute, okay? One can hold the chart, one can explain. मिक्स लैंग्वेजेस करता है, हिंदी एंड इंग्लिश। बड़ा this time हुआ। Okay, so our topic was how social life, like what are the challenges we face and the solution. First one, we've drawn a clock here, like too much time in mobile. So usually nowadays, like youngsters and mostly adults also, we use phones once we get up or before sleeping. Most of the time we spend on phone. So that's why we've written कि उसका solution is that we should limit the screen time. Obviously we cannot like बंद नहीं कर सकते पूरा, so इसलिए limit करना चाहिए, like जितना चाहिए we can use it. And before like using phone and everything, we should like give first preference to our God before using the phone and all. बाद में pool of information, इंटरनेट पे सोशल इसमें हमको लाइक बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं, लाइक मे बी ट्रू फॉल्स जो भी है, लाइक बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस। सो उसका वो मोस्टली फॉल्स ही होते हैं और सही नहीं होते। सो उसका सोल्यूशन क्या इज़ दैट इफ़ यू वांट इन्फॉर्मेशन वी कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन इन द बाइबल जो हमारे पास होता है। so, उसमें बहुत सारा नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन, वी कैन यूज़ दैट एंड वी कैन आस्क द चर्च एल्डर्स एंड द फैमिली। देन डिजिटलाइजेशन, लाइक मोस्टली अभी लोग फ़ोन्स एंड ऑल यूज़ करते हैं, फ़ोन्स में ही लाइक बाइबल्स एंड ऑल होता है, सो इट्स बेटर टू कैरी द फिजिकल बाइबल। बाद में इन्फ्लुएंस बाय सोशल मीडिया, like people get influenced by social media, but we should make God as an influencer. There's a verse in the Bible, Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what is good and acceptable and perfect will God. Okay, so we had the same topic, challenges faced by the believers regarding the media. So first challenge is starting the day with social media. So most of the people start their day with the social media, checking WhatsApps, checking the notifications and all, checking the news. So what we forget to do, we forget to remember the Creator who has created us. We forget to thanksgive Him to giving us good sleep, to giving us for giving us the good day. तो हम भूल जाते हैं कभी कभी, तो इसका सोल्यूशन है कि फर्स्ट वी शुड प्रे, फर्स्ट वी शुड गिव द क्वाइट टाइम एज अंकल taught us. So we should do this and stop checking our WhatsApps and other things. Second is family expectations based on social media. आजकल बहुत सारा ट्रेंड है कि if your husband is doing this, then your husband is good. If your husband is doing all these things, then he is bad. Your wife is doing, your children's, your father, your mother is doing. So we are judging the personality of our family members on the criteria given by the social media. But as the Lord says, accept and believe God's will, plan and purpose. Whatever God has given you, you should accept everything. He is giving you everything which is good for you. So we should not get influenced by the social media's criteria, but we should accept it and we should believe in God's will, that He has given us what it is good. Then the third point is blindly believing on false teaching. There was a verse actually based on social media, which got very viral nowadays. Like, God help those people who can help themselves. It is a wrong quote. Bible teaches us the opposite one. God helps those who cannot help themselves. मतलब अगर हमने वो कोड पे अगर ध्यान दिया तो हम सेल्फ प्राइड आ जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंस आ जाएगा, क्योंकि
हम सोचेंगे कि वी कैन टेक केयर ऑफ आर सेल्फ, बट बाइबल टीचर्स अस गॉड टेक्स केयर ऑफ देम सेल्फ हु कैन नॉट हेल्प देयर ओन सेल्फ. So then it is access to unwanted content. We many times get unwanted content in the Instagram, Facebook, and YouTube. So as uncle taught us that you know consciously that God is seeing you, but you do not acknowledge it that God is really seeing you. So we should every time acknowledge God's presence, that God is every time watching us what we are seeing. Last is adapting, challenging ourselves as per social media. Like we get influenced by the social media, we keep other person as our role model and we act like them. But what the word of God says, changing ourselves as per word of God. Leviticus says, ye shall be holy for I am holy. We should always keep our role model to God. Thank you. नेक्स्ट टीम प्लीज, जल्दी आइए आप लोग. या मेक इट फास्ट प्लीज. कीप द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यू लूज मार्क्स. Our question was that how does social media affects our language, perspective, and lifestyle, and its remedies? So by scrolling reels every day on our phones, we use inappropriate words or languages. Our purity of speech goes. Like we gossips a lot with friends and all. So for that, we should avoid gossiping. We should read Bible every day to control our words. Through our words, we should glorify God. We should encourage others. So in perspective, we do a lot of comparison with each others. Then we feel insecurity about that. We influence each other in not a good way. So for that, we shouldn't copy ungodly things. Then we should value our inner faith over our outer beauty. And we should trust God when we are pressured by social media. Then in lifestyle, we follow a lot of Bollywood trends, their outfits. Then we prepare a fake identity on social medias. Then we tend to have less face-to-face interaction, and we have more interaction on our phones, on apps. And for that, we should talk with each other through our Bible verses. Then we should avoid following ungodly things. We should act in a way that we should honor our God, not to disobey Him. And we should keep our thoughts clean and peaceful. And we should share, encourage these remedies always in our lives. टीम थर्ड, जो अभी भी सोच रहे थे आप लोग, कम ऑन. टीम थर्ड, नो सेकंड. टीम टू हो गया. टू ये टीम टू ये, सॉरी बॉयज. टीम टू. पोस्टर गायब, पोस्टर गायब. टीम थ्री कम. यहाँ टीम थ्री भी गायब हो गया. आप बॉयज का टीम टू मैसेज पहुंचा दी, रात को व्हाट्सएप कर देना. कल पोस्टर लेकर आए, 3 का और 2 का देखना है मेरे को, खासकर टीम थर्ड का. 3 है. Good evening, everyone. We will be talking about the influence of social media on 3 generations. We see here a Venn diagram, that is millennials, Gen Z, and Alpha. Here are the key points on how millennials were independent. They were not so influenced by social media because of lack of privilege. Here you see Gen Z, which is both balanced. Like they never left the traditional methods, and they were also holding on to the phones or AI or social media. So millennials, they were 100% in communication. Like they used to interact with people in person rather than phones. And they had their very own physical Bible, different like Gen Alpha or Gen Z, who both rely on phone or their own Bible.
For Bible study, they use the traditional methods, that is commentaries or books, or like they were more depending on God instead of social media or the phones which were created by people. So altogether, if I would like to conclude, Gen Alpha, like coming from millennial or Gen Z, I would, as a group, we would conclude that Gen Alpha is the generation which is the upcoming generation, and we would want, or we would advise them to not only rely on AI or on the man-made resources, instead completely rely on God. That is what our Bible teaches, and be prominent in in-person communication, own their own Bible, engage in family interactions, and thereby in hospitality, discipline, and promote healthy relationships, and be more active in self-Bible studies, and relying more on God and not on AI and phones. Thank you. Our topic was based on 3 generations, Gen Z and Gen Alpha, and Gen Beta, the upcoming generation. There are 4 problems in 2 generations. First is critical thinking. दोनों जनरेशन में ज़्यादातर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टडी में कोई क्वेश्चन रहा तो वो सर्च करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए, उस पर ज़्यादा थिंक नहीं करते कि ये क्वेश्चन कैसे आया, क्यों आया और कहाँ से आया, वो थिंक नहीं करते. तो इसके लिए सल्यूशन क्या है कि बुक्स रीड करना, नहीं तो स्क्रिप्चर्स मेडिटेशन, ज़्यादा बुक पढ़ना, उससे एक सर्टन टॉपिक लेकर उस पर रिसर्च करना. जितना ज़्यादा रिसर्च होगा उतना ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग ग्रो होगा. सेकेंड है इंटरेक्शन एंड लोनलीनेस. दोनों जनरेशन्स के क्या करते हैं कि फ़ोन पर बैठते हैं अकेले अकेले, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, और इंटरेक्शन ना होने की वजह से लोनलीनेस, डिप्रेशन, ऐसे प्रॉब्लम्स और कॉजेस होते रहते. तो इसके लिए सल्यूशन क्या है? आउटडोर एक्टिविटीज़, बाहर जाना, ट्रेकिंग करना ज़्यादा, क्योंकि बाइबल में ही लिखा है, मैथ्यूज़ बुक में, आउटडोर एक्सरसाइज, इंटरेक्शन करना. और थर्ड है शो ऑफ और प्राइड. शो ऑफ और प्राइड यानी ज़्यादातर हम देखते हैं कि दोनों जनरेशन्स के दोनों जनरेशन क्या करते हैं कि कुछ खरीदना हो तो वो अपने नीड नहीं देखते, वो वांट देखते, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम जैसे कि आईफोन हुआ, उसमें भी फीचर्स है, पर 20-30 हज़ार में भी वही क्वालिटी के फ़ोन आते हैं, पर शो ऑफ दिखाने के लिए मेरे पास ये है. इसके लिए इसके सल्यूशन क्या है कि हम्बल रहना. अपने पास ज़्यादा है उतना है, उतने में ही खुश रहना. जितना भगवान ने हमारे लिए दिया है उतना ही में खुश रहना. और फोर्थ पॉइंट है डोपामाइन साइकिल. डोपामाइन साइकिल यानी किसी चीज़ का अति उत्साह, मतलब ज़्यादा होना, उस बार बार यानी एक 30 मिनट्स का कोई वीडियो हुआ तो उसमें ज़्यादा खुशी मिल रही हो, तो 20 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, पर वो चीज़ लगातार चाहिए. जैसे कि अभी 15 सेकेंड की, 10 सेकेंड की रील्स हुए
तो वो बार बार देखने के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, डोपामाइन बढ़ जाता है। तो इसके लिए सोल्यूशन है सोशल मीडिया डिटॉक्स, यानी एकदम से वो आदत नहीं छूटती। तो इसके लिए 1 घंटा कम करना, 2 घंटा, आधा घंटा, ऐसा टाइम थोड़ा बड़ा कर सोशल मीडिया का यूजेज है वो कम करना है। तो इस जीन बेटा को कंक्लूजन प्रिकॉशंस क्या करना चाहिए कि 2 पॉइंट्स है। पहला है सोशल मीडिया लिटरेसी, कि सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक ये नहीं, उस रिसर्च मतलब कुछ नया सीखने को मिले, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और कुछ इंफॉर्मेशन इनर ग्रोथ के लिए वो। और सेकंड, मेडिटेशंस इन चाइल्डहुड, बचपन से ही आदत होनी चाहिए बाइबल पढ़ने के लिए, उस पर अध्ययन करने के लिए। ये सब दोनों प्रिकॉशंस किया तो क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाएगा, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, लोनलीनेस कम हो जाएगा, और शो ऑफ प्राइड वो कम हो जाएगा, और हम्बलनेस ही होगा, और डोपामाइन साइकिल कम हो जाएगा थोड़ा। पहली बात, आपके सभी के प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मज़ेदार प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं। हमने कुछ प्रश्न क्लब किए हैं, मतलब रिपीटिशंस भी हैं। तो हम लोग, आप सब ने लिखा है मुझे मालूम है, तो हम कुछ सारा पढ़ेंगे, लेकिन जवाब हम कुछ कॉमन है कि सब कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। और अगर लगता है जिसको मराठी में नहीं समझ में, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, तो हाथ खड़े कर सकते हैं। तो कोई अगर मराठी में ट्रांसलेट चाहता है तो वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। Should I read the question? Give a gist of the question. Okay. So one person has written, well, lot many things happens in life and doesn't know whether it is from God or God is trying to teach me something, and why I cannot understand what God is trying to tell me. Is it from God? The answer is, well, sometime from God's perspective, God permits certain test in your life so that you will know more about God. Example, Job. Job was so innocent that he didn't know what was happening in heaven, and it took place. Then Jacob, after losing Joseph, see, God could actually tell Jacob, hey, your son is alive, but God was silent. Jacob had to wait almost 26 years to see Joseph. Until then, God was silent. Why? There could be some human interference that is possible. So that is the reason God was just silent. But later, Jacob or Joseph did not blame God. So it is purely divine. Now, the other aspect is sometime, maybe because of your mistake, you may end up in some problem. But even in that, God will not fail you. God will make that incident for you to be a lesson to come out. So these are the two perspectives. From godly perspective, He may teach you through an experience. And in your mistake also, that's your mistake, but God will still teach you certain things. That's the answer. या आप सबको समझ में आ गया है ना? ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन में जाएंगे तो और समय जाएगा, है ना? तो चूंकि आप लोगों में से कई लोगों ने इंग्लिश में लिख के दिया है, तो वी आर अज्यूमिंग दैट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड विल रेस्पॉन्ड दोज क्वेश्चंस इन इंग्लिश, ठीक है? There are a set of questions which asks about how can we build a healthy relationship with God? How can I grow in God? We have interest to know Christ more personally. How can we do that? Okay. John 15 and verse 4 says, abide in me and I in you,
As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. प्रभु यीशु मसीह को या फिर परमेश्वर को जानने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है वो है जो कमिटमेंट आपने प्रभु के साथ लिया है उसमें आप बने रहें. ठीक है? If you have made a commitment to the Lord, abide by that commitment. Number one. Number two, how can you abide in that commitment? You can only abide in that commitment by spending time with God. Right? आज हम लोग जैसे spiritual rhythms देख रहे थे ना, you engage with the scripture, spend time in prayer, spend time in fellowshipping with people, listen to God, and you speak to God. It's a two-way transaction, right? And that's how you grow more and more in the Lord. परमेश्वर के बारे में आपको कहां से जानकारी मिलेगी? बाइबल में से जानकारी मिलेगी, और कहीं बाहर यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के विषय में आपको जानकारी नहीं मिलेगी. So unless you don't read the Bible, spend time with God, you will not be able to grow. ठीक है? One of the questions here is, I'm trying to read the word, trying to spend time in prayer, but I don't know what else to do. Don't be confused. Just do this. जो आप कर रहे हैं उसको आप समर्पण के साथ करते रहे, and the Lord will help you to grow in it. Because outside Bible, there is no other growth for you. Okay, that's why it's called spiritual food. Unless you don't eat the food, you will not grow. All right. So I have 5 set of questions that's very similar. मतलब 5 प्रश्न बहुत मिलते जुलते हैं. How does a person should behave in a society of non-believers? Yeah. How can a person be referred as light where people don't know about Christ? Or how my non-believer friend can see that I am a believer, or how can I confess my friend that I believe in Christ? Or how can I explain someone that I believe in Christ? Especially, you are asking a question that how can I show Christ to a non-believer? It can be a friend, it can be anyone in your society. मतलब कोई भी व्यक्ति आप चाहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में या उसके विषय में बोलूं, बांटूं या कैसे दिखा सकूं. आपको ये बात प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह खुद मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में कहते हैं, तुम इंसानों के सामने प्रकाश के समान चमकना. यू हैव टू शो द लाइट इन फ्रंट ऑफ अदर मैन. पहली बात. दूसरी बात, यूहन्ना सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें वो कैसे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो? तुम्हारे प्रेम के दिखाने से. सो यू हैव टू लिव आउट द गॉस्पल. जब आप सुसमाचार को समझ लेते हैं, when you understand the gospel very well in your life, when you are truly saved, when you understand the concept of gospel, the forgiveness and his life with spirit, पवित्र आत्मा के आधार पे, वचन के आधार पे आपके जीवन से उसके चरित्र को दिखाना आप पहले प्रयास करेंगे, उससे प्रेम करना शुरू करेंगे. अपने व्यवहार से, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो नॉन बिलीवर्स हैं, जहाँ मैं काम करता हूँ, मेरे पड़ोसी जन, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से मौके मिलते हैं. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. हाउ डू यू डील विद नॉन बिलीवर्स? समझ में आ रहा है आप लोग को? चाहे आपके मित्रगण हो, कॉलेज में हो, जहाँ पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, यू हैव टू बी 100% अलर्ट इन वेरी स्पेसिफिक मोमेंट्स. ऐसे बहुत सारे संदर्भ आते हैं. आप किसी के पड़ोसी हो, बहुत संदर्भ आते हैं. आप स्कूल में, कॉलेज में, से बहुत संदर्भ आते हैं. आपको सचेत होकर उस मौके पे आपको अपने चरित्र में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाना है. अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो ये सब बातें नहीं कर पाएंगे. इसलिए वही बात हो गई है कि आप जिस से आप रिश्ते में हो वो कौन पहचानेगा? उस रिश्ते से आपकी कैरेक्टर को झलकना है. लिव आउट द गॉस्पेल है. तभी अविश्वासी लोग आपके जीवन से आकर्षित होकर ये बंदा, यह व्यक्ति अलग है. आप ऐसे सोच कैसे सकते हो? आप ऐसे कर कैसे सकते हो? जब से प्रश्न पूछते हैं तब आप आराम से सुसमाचार उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप बांट सकते हैं. कह सकते हैं कि जो आप देख रहे हो मेरा स्वभाव नहीं है. ये किसका स्वभाव है? प्रभु यीशु मसीह. ठीक है? Yeah, just to add one point, किसी ने इस प्रकार से कहा है
कि ऑलवेज प्रीच द गॉस्पल, इफ नीडेड यूज वर्ड्स। ठीक है, हमेशा सुसमाचार का प्रचार करें। कैसे करेंगे? अपने जीवन के द्वारा। आपका जीवन सुसमाचार है, जरूरत पड़ी तो शब्दों का प्रयोग करें। Okay, how do we understand the plan to a situation is really by the Lord? So, any situation that comes to me, how do we know that it is from the Lord? Well, God's will never change. His will is completely given here, which means that which goes against what I am seeing, something that is not matching with the word, pakka, it is not from the Lord. Yes or no? Then, as Abhi brother said, you should have a constant relationship with God. You will come to a status that you become a mature Christian, whether you are able to analyze that, well, actually this is from the Lord. You come to a maturity that discernment, So I'm not talking about the gift of discernment, but you will know that, okay, by the word, it is from the Lord. Then apply trust. If you understand that, okay, the will of God, I understand that this situation, it is by the Lord, the scripture says, move forward with the trust. That's all. If it is against the scripture, anything that happened, the situation, avoid it. Okay. So along with that, let me just go with the two more questions. Both questions are almost similar. Well, both people, I will just say the nutshell. I often commit sin. I am a born again and baptized. I am growing in the Lord, but knowingly or unknowingly, I do some sins. Will God forgive me? The answer is, if you confess your mistake, He is faithful and just to forgive all your sins. But let me add along with that verse, 1 John 1:9, if you confess, which means, can you confess any time? Oh, tomorrow also I'm going to do a sin, so let me confess it. Even in advance I can confess. No. Same 1 John chapter 3 verse 6 says, one who is born of God does not continue in sin, which means, even when I confess, my inner heart is saying, Lord, I confess that I will not repeat it again. When Jesus forgave that adulterous woman, what did He say? Sin no more. So I say, well, this is your firm determination with the Lord. The Lord, help me not to continue with this sin. If you have a sincere heart on that, definitely God will help you. Since you asked the question, in your age, I went through so much of struggle, of certain struggle that I cannot just say publicly. Yeah, maybe kind of addiction. Yeah, even after becoming a believer, yes. And I took decision and I prayed to the Lord, Lord, I want to change this nature. Let me tell you, I have won over so many things. So, a believer who continues in sin and keep on asking the forgiveness is not a right confession. Okay? So, you ask the forgiveness, depending on the Lord, that Lord, I will not continue this. You may fall, but still, get up and go forward. You want to add something? Romans 12, 1 and 2 constantly reminds us, being renewed in your mind daily. Submit your life as a daily sacrifice. हमारे जीवन को प्रतिदिन परमेश्वर के पास ले जाकर समर्पित करना. How can I know that I am on the right track in my Christian life? And there's another question about what is discipline according to the Bible. जो सेशन में ले रहा था उसमें मैंने बताया था what are the indicators of true or a genuine believer or a disciple, right? Number one is that you will have a true love for the Lord and for God's people. If that is not there in you, every time somebody has to force you to go to the church or do certain things or to grow spiritually,
that means you are not on right track. Okay, there is something seriously wrong. Either you have not understood what is salvation, or you are not really growing in the Lord. Someone who is genuinely transformed and growing in the Lord will have a desire and a love towards God and towards God's people. Second, as I mentioned, you will start to show the fruit of Spirit in your life. If those things are happening in your life, you can be rest assured that you are on right track. Does that mean you will not fall? No. You will still fall. You will still fall into sins. But the point is that even when you fall, as brother just reminded, it is our responsibility that we stand up and ask forgiveness to God, because God is a God who is faithful in forgiving us. What is discipline? Discipline is those practices that we bring in our life to grow in the Lord. Reading the Bible is a discipline. Praying is a discipline. Spending time alone is a discipline. So all these disciplines would help us to grow more and more in the Lord. So that's how we know that we are in the right track. अगर ये किसी भी चीज के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? And one thing I want to say very seriously, at least I hope that those who are not here will also get this message. See, nobody is forcing you to come to this camp, right? You have come here with your own decision. You have paid the registration fees with your own money. If you have shown that much of commitment, why can't you be here on time? Why can't you attend all the sessions? Why can't you commit fully to something that you have already committed? Right? अगर बार बार आप लोगों को बोलना पड़ रहा है कि समय पे आइए, सारे सेशंस अटेंड कीजिए, that means inherently there is something. आपको किसी ने बोल के भेजा, नहीं तू जाके अटेंड करके, आप खुद से नहीं आए. ठीक है? So there are small things which shows us that our heart is not towards the Lord. There are our attractions of life, जीवन की बातें बाहरी चीजों में ज्यादा है ना? Those are indicators, and if you see those indicators in your life, be very serious. अपने जीवन में careful, because there are chances that you will be completely slipped away slowly and gradually. एक बात और, हम जब तीनों उसका उत्तर दे रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान सुनिए कि हो सकता है कि आपका सवाल का उत्तर कोई और भाई भी दे रहा हो. जरूरी कि वो प्रश्न मेरा तो नहीं है, मैं सुनूंगा नहीं, ये मत करिएगा. हम तीनों मिलके इन सवालों का जवाब दे रहे हैं. तो क्वेश्चन है दो जो बड़े कॉमन है. Even after baptism, if we do sin, will we go in heaven or hell? Or it's been years I'm saved, but today when I look in my life, I still doubt whether I'm already saved when I got my salvation. I'm still confused. ये एक बहुत common, एक स्वाभाविक, एक प्राकृतिक, it's a natural feeling when we struggle with sin, even after baptism, even after we are truly saved. जैसे मैंने, अगर आप ध्यान से सुना होगा, आज भी और कल भी मैं रिपीट किया था, हम उद्धार प्राप्त करने के बाद भी हमारे शरीर में क्या है? स्वभाव पाप करने की क्षमता है. अब होता क्या है, मैंने आज समझाया था, जब भावनात्मक तौर पर इफ वी ट्राई टू स्ट्रेस एंड बिलीव इन आवर फीलिंग्स, यस, देन यू डेफिनेटली डाउट योर सैल्वेशन. आप भूल जाते हो हमारा उद्धार विश्वासी से हुआ है. आपने कुछ कर्म करके, अच्छे बनकर, चर्च में जाकर बड़े अच्छे बिहेवियर के आधार पर उद्धार नहीं मिला. या आप आज बड़ा अच्छा फील कर रहे थे, वाह गोवा के बीच में आ गए हैं, अच्छा फिश और क्रैब खा लिया है, मेरा उद्धार हो गया. ऐसा हुआ है? नहीं. अगर फीलिंग के आधार पे उद्धार मिलता तो हम में से किसी का भी उद्धार नहीं होता, है ना? जिसने प्रभु यीशु मसीह पुत्र, उस पिता के पुत्र पर विश्वास किया, उसको अनंत जीवन. सो विश्वास किस पे करना है? प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, जो विश्वासी से हुआ है, जो एक दान दिया गया है, फिर पत्री में लिखा है 2 अध्याय में, है ना? तो इस कारण से हमारी भावनाएं जब बिगड़ती है, शंकाएं पैदा होती हैं, शक पैदा होता है अपने ही विषय में, अपने उद्धार के. इसलिए अपने पवित्रीकरण जीवन पे ध्यान देकर हर दिन अनुशासन, जो डिसिप्लिन शब्द इस्तेमाल किया गया है, डिसिप्लिन मतलब आया है शब्द है बार बार करना, तभी आपका उद्धार का जो अनुभव एश्योरेंस आत्मा में और बढ़ता चला जाएगा, परिपक्व होते चलेगी. वी गेट मैच्योर्ड इन फेथ
through Spirit, and Spirit will assure your faith through His word when you do it daily. समझ रहे आप? हर दिन अनुशासन में बढ़कर आपका विश्वास और पक्का, मजबूत और स्थिर होता चला जाएगा. समझ गए आप लोग? Thank you. Okay, last question from my side. If the scripture says that an offspring is a gift of God, then how is it that it is also true that we are born as sinner? See, children are gift of God. Then how can you call the gift of God as sinners? Well, let me tell you, when Seth was born, it is written in the scripture that he was in the image of Adam, which means how Adam was, the similar way Seth came out. So there is a view in theologically, Traducianism. Okay? Traducianism means man and woman has the capability to procreate children with material and immaterial aspect. You and I have material body, but you and I have an immaterial aspect which you have never seen. That is soul. Do you think the soul is created in heaven all of a sudden and suddenly placed in the womb of in the mother or in the newborn baby? No. Man and woman are given the ability to procreate body and soul or spirit, whatever. Which means when a baby is formed, the life is formed in the womb of a woman, then itself the sin is transformed there. So children are gift of God, yes. But because of Adam's sin, the children are sinners. Psalm number 51, David says, in my mother's womb, I was conceived in sin. Yeah. And along with that, there's a sub-question. This is a personal conflict with David. This person has a personal conflict with David. Well, God praises David, but for me, I never liked him. Well, God never praised David. God sent Nathan to condemn him. On his face, Nathan spoke, "You are that criminal who killed an innocent man." Then God forgave him. Yeah, that's true. But he punished him. His first child died. You know the situation that he went through? It is severe. He cried a lot. He wept. And he has written in his psalm, "Lord, you don't desire a sacrifice, but you will not deny a broken spirit." And after this confession, did David ever repeat the same sin? No. So God accepted him. So we don't have, sin has its consequences. Later David struggled because of his children. What he has done in secret, his sons done in public. Sin has its consequences. So David was never praised. David was praised because of his true confession, not because of his sin. Okay. Just to add to that, if you carefully study the life of David, आप लोग ध्यान से दाऊद के जीवन को पढ़ेंगे, from start to end it was full of struggles. Even though he was declared as the king of Israel, he couldn't get the kingship. He was running for his own life, right? And there was a time when he had a desire to build the temple for God. And what did God say? You have blood in your hands. You cannot build a temple for me. But I will bless you how? Your son will build a temple for me. Okay. So, whether it's a biblical character or whether it is anyone, people are all sinful people. God punishes them for their sins, and God is gracious enough to even forgive and lead them further. Right. Next set of questions. How can I become a member of a church that pleases God? And how do I understand what is my service? Okay. First of all, when you go to a church, understand that if it is a Bible-based church,
Is it a church that follows the scripture as it is? There could be many churches who follow some Christian traditions, some rituals, है ना, कुछ कुछ चीजें करने में ज्यादा उनका ध्यान है, परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित नहीं है। सबसे पहली बात आपको देखनी है कि आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं, क्या वो कलीसिया बाइबल आधारित कलीसिया है? परमेश्वर का वचन कलीसिया के संबंध में जो बातों को बताता है, क्या उसका पालन हो रहा है? दूसरा, क्या परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता वहां पर मिल रही है? Is the word of God getting priority, center? Is Jesus Christ at the center of that church focus? If you see all those things, you can be rest assured that it is a good church and you can be part of the church. Now, how you would become a member of that church? Speak to the elders of that church and get to understand that you want to join and be regular to the church, and they will help you to become the part of the church. How do you understand what is your service? First of all, understand what is your spiritual gift. जब हम उद्धार पाके अपने जीवन में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हम सबको परमेश्वर की ओर से, आत्मा की ओर से एक वरदान दिया जाता है, जिसको आत्मिक वरदान कहा जाता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। उसके बारे में हम लोग बाइबल में 4 भागों में अलग अलग आत्मिक वरदानों के विषय में देखते हैं। तो पहचानने की कोशिश करें कि आपको परमेश्वर ने कौन सा आत्मिक वरदान दिया है। ठीक है, उदाहरण के लिए मुझे परमेश्वर ने सिखाने का, टीचिंग का वरदान दिया है, तो मेरी सेवा कलीसिया के लिए क्या होनी चाहिए? प्राथमिक तौर पर सिखाना। अब हो सकता है कि साथ में परमेश्वर ने मुझे एनकरेजमेंट का भी गिफ्ट दिया हो और सर्विस का दूसरा भी गिफ्ट दिया हो, लेकिन मुझे पहचानना जरूरी है कि मेरी कलीसिया के जरूरत के अनुसार मुझे अपने गिफ्टिंग को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहचाने कि आपको क्या आत्मिक वरदान परमेश्वर ने दिया है। उस आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए आपको करना है। यू हैव टू यूटिलाइज योर गिफ्ट्स फॉर द चर्च, एंड दैट्स व्हाई गिफ्ट्स आर गिवन, सो दैट यू कैन बिल्ड अप द चर्च। दूसरी बात, एक और सवाल जो यहां पर है, मुझे प्रभु के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कॉलेज और एजुकेशन, वर्क, ट्रैवलिंग के कारण मुझे समय नहीं मिल पाता। स्ट्रेट एंड सिंपल आंसर इज यू नीड टू लर्न टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपको अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। हमारे पास भी 24 घंटे हैं। इलॉन मस्क का नाम सुने आप? हैं? कौन है? गोवा का प्राइम मिनिस्टर है क्या? He is one of the most successful businessman out there, right? उसके पास भी कितने घंटे हैं? 24 घंटे, है ना? वो कंपनी पे कंपनी खोले जा रहा है और हम यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। We need to learn how to manage our time, prioritize, है ना? Prioritize for what things you have to keep how much of time, and think about how you can manage time. If you're not finding time with your education, travel and all, 6 बजे सुबह सोकर उठते हैं, 5:30 बजे उठ जाइए। You will get half an hour. Spend time with God. Learn how to manage your time wisely so that your commitment towards God is reflected in your time management. मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, फिर भी प्रश्न बनूंगा, तारण के लिए क्या करें, उद्धार के लिए हम क्या करें? हम इसको सुन चुके हैं। विश्वास करने की सख्त आवश्यकता है, उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आत्मा आपके जीवन को बदलेगा। और हम 2 दिन से समाचार ही सुन रहे हैं, जो बोला जा रहा है यहाँ से, परमेश्वर आपको, हम आपकी मन में अपनी आत्मा के द्वारा, उद्धार के द्वारा आपको उद्धार हो सकता है। यहाँ पे एक प्रश्न है, इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड गॉड एज योर सेवियर बट डोंट नो व्हेन टू टेक बैप्टिज्म, व्हाट इज़ द सोल्यूशन? एक कलीसिया के तौर पे हम लोग जब हमारे विश्वास से उद्धार प्राप्त करते हैं, तो अक्सर हम कलीसिया के तौर पे वो अगुवे के पास आते हैं, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, और एल्डर्स लोग, अब पहले क्या हुआ करता था कि जिस दिन आपको उद्धार हो उसी दिन बपतिस्मा हुआ करता था। अब कलीसिया समय काल में अभी हम लोग कुछ समय को देखते हैं, उसके व्यवहार, उसके शिक्षाओं को और बड़े समझ में बढ़े, वचन में बढ़े, और अपनी गवाही कलीसिया में दें। अगुवे इसके विषय में प्रार्थना करेंगे, और जैसे हमारे कलीसिया में उसके लिए हम बैप्टिज्म क्लासेस लेते हैं, मतलब उस
बपतिस्मा का जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत को सिखाया भी जाता है, उसके बाद हम फिर पूछते हैं, उसके बाद वो निर्णय लेते हैं, हाँ मैं अब तैयार हूँ, उसके बाद कलीसिया उसको बैप्टिज़म देने का डिसीजन लेते हैं। हम लोग अक्सर हमारी कलीसिया में काफ़ी लोग हिंदू प्राश्चात्य आते हैं, हम लोग ग्रुप में देते हैं, जब थोड़ा 2 या 3 लोग इकट्ठा ना हो जाए, और अक्सर कभी कभी हम एक को ही देते हैं, लेकिन एक प्रतिक्रिया के द्वारा अगुवे लोग उसका डिसीजन लेके करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने पूछा है तो अपने अगुवे के पास जाइए और इस विषय में और आप अध्ययन करिए। एक सवाल है, मेरा उद्धार तो हो गया है लेकिन मुझको भूत से डर लगता है। ओके, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अपने बारे में याद आया कि मुझे सांप से डर लगता है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, है ना? तो मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं? यस। डर स्वाभाविक है, डर ज़रूरी है। डरोगे नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, सांप आपको काट लेगा, आप गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। डर प्राकृतिक परमेश्वर ने दान दिया है इस संसार में, जिस पाप से भरा संसार है। डर ज़रूरी है, अच्छा डर ज़रूरी है। तो इसे विश्वास के आधार पे आप इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। हमें बहुत वस्तु से डर लगता है, इसलिए आप अपने विचारों को बदलें, भावनाओं के आधार पे उद्धार का मूल्यांकन ना करें। ओके, एक प्रश्न है, हाउ डू यस गो अहेड। Ghost is real or fake? Real. Ghost is the fallen angels, is not the dead spirit, spirit of the dead ones. But actually the ghost can imitate the voice of a dead person to make you fearful. But who is more powerful, Holy Spirit or ghost? So if you are a person who is possessed by Holy Spirit, Satan or ghost has no control on you. So they may threaten you, frighten you, but be bold. Don't fear. Okay? Yeah. And I think Bible में उत्पत्ति from Genesis to Revelation, the maximum word which God uses, do not fear. Do not? He is with you. Okay. जल्दी से और कुछ है प्रश्न? Okay. ये कुछ प्रश्न बस आखिरी क्वेश्चन है. You want to go? I'll take this one first. How do you handle rejection by the society while executing Lord work? परमेश्वर के सेवकाई करते वक्त समाज आपको ठुकराता है, रिजेक्ट करता है। ये एक बहुत स्वाभाविक बात भी है। सेवकाई में रिजेक्शन, आपकी बात को ना सुनना, आपकी बात को ठुकरा देना, आप पे विश्वास ना करना, आप जो बोल रहे हैं बकवास बातें कर रहे हैं, आप प्रभु की सुसमाचार सुना रहे हैं, कलीसिया के लिए काम कर रहे हैं, आप प्रचार लेके ट्रैक लेके बाहर जा रहे हैं, अपने मित्रों से बात कर रहे हैं, सेवकाई ला जो भी आप प्रयास करते हैं, संसार की आंखों को, बुद्धि को अंधा कर दिया है, लिखा गया है। दे वर डार्केंड, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, दे कैन नॉट सी। इसलिए जो रिजेक्शन है वो स्वाभाविक है। परमेश्वर वो काम को करेगा, आप अपना काम करिए। वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, उसको चुनाव है। आप समझ रहे हैं? दुनिया क्या सोचती है और क्या बोलती है, उसके आधार पे सुसमाचार का काम या कलीसिया का काम आप रोक दें, वो गलत निर्णय होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्या किया उन लोगों ने? प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपनाया नहीं, अपनों ने ठुकरा दिया। They themselves rejected him being a Jew. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ठुकराया है, तो आप और हम क्या है? प्रभु यीशु मसीह को बोला मुझे ताड़े, वो तुम्हें भी अब प्रताड़ित कर। They'll persecute you, they'll go through pain, they'll spit on you, they will throw you into jail. आप जेल में फेंके जाओगे, आप एक काम की सेवा को बंद किया देंगे। This all will go through us, this will happen. यही तो प्रभु यीशु मसीह का आज भाई भी उस क्रूस के उस पद को समझा रहे थे। वो वेदना, वो निंदा प्रभु यीशु मसीह ने सहा, मुझे और आपको भी सहना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अक्सर यूथ कैंप में सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल है, लेकिन यहाँ पे सबसे कम यही सवाल आया है, एक ही सवाल आया है। हाउ डू आई नो वेदर द बॉय दैट आवर पेरेंट्स सी फॉर अस इज द वन फॉर अस, है ना? जो लड़के को मेरे माता पिता ने मेरे लिए देखा है वो सही व्यक्ति है कि नहीं, या फिर कैसे मैं पहचानूं कि मुझे इस व्यक्ति से विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये कईयों के मन में होगा ये सवाल, लेकिन एक ही ने लिखकर पूछा, है ना? ठीक है, तो
सबसे पहली बात, बाइबल में विवाह के लिए कितने कंडीशंस दिए गए किसी को मालूम है? आपको कैसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहिए? व्हाट आर द क्राइटेरिया टू गेट मैरिड? कितने कंडीशंस दिए किसी को मालूम है? हाँ, 2। सबसे पहला, लड़के को लड़की से करना चाहिए, लड़की को लड़के से करना चाहिए। यह पहला कंडीशन है, ठीक है? अ मैन शुड गेट मैरिड टू अ वुमन शुड गेट मैरिड टू अ मैन। मैरिज इज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया मेंशन मैथ्यू चैप्टर 19, ठीक है? यू नो व्हाट इज द सेकंड क्राइटेरिया? Second criteria is you should not be unequally yoked with a unbeliever. यानी कि आपको एक अविश्वासी के साथ विवाह नहीं करना। नहीं तो क्या होगा? आप एक अनइक्वल योक, यानी कि आप दबाव में अपने जीवन को बिताने लगेंगे और परमेश्वर से आप दूर जा सकते हैं। सिर्फ ये 2 कंडीशन दिया है विवाह के विषय में। इसके अलावा बाइबल कौन से रंग के आदमी से शादी करना है, कौन से कास्ट से शादी करना है, कौन सी भाषा से शादी करना है, कौन से नौकरी वाले से शादी करना है, बाइबल में कहीं कुछ नहीं बताया गया। ये सब किसका बनाया हुआ है? ये सब हमारा बनाया हुआ है, मनुष्यों का बनाया हुआ है ना? मलयाली को मलयाली से ही शादी करना है, मराठी बोलता है तो मराठी के साथ ही शादी करना। ये सब हमारी मनुष्यों की सोच है। बाइबल में इसके विषय में कुछ नहीं दिया गया। तो यदि आप अपने जीवन में विवाह के विषय में सोच रहे हैं और आपके पास एक रिश्ता आया है, तो ये 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। एक, लड़का ही है ना ठीक है? दूसरा, प्रभु से प्रेम करता है क्या, विश्वासी है क्या, उद्धार पाके बपतिस्मा लेके कलीसिया के साथ सहभागिता में प्रभु में बढ़ने वाला, प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति है या नहीं। अगर ये 2 क्राइटेरिया मैच हो गए तो याद रखे, आपका विवाह गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के उस इच्छा के अधीनता में हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमको सोचने की आवश्यकता है जिस संसार में हम जी रहे हैं। एक, आपके जो अपब्रिंगिंग है, आप जिस प्रकार से पले हैं, बड़े हैं, हो सकता है कि उसमें आप कुछ बातों के साथ आगे बढ़े हैं ना। यू मे हैव सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ, सर्टेन कंडीशंस इन योर लाइफ, कुछ सोच विचार आपके हो सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप ये जानने का प्रयास करें कि सामने वाला व्यक्ति जिससे मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूं या फिर जा रही हूं, उस व्यक्ति की सोच मेरे साथ मिलती है या नहीं। उदाहरण के लिए, मैं जब सेवा के लिए निकला, मैं उसके बाद शादी किया। पूर्णकालीन सेवा में निकलने के बाद मैंने शादी किया। तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूं उसको भी पूर्णकालीन सेवा के लिए सहमति हो, है ना। लेकिन अगर उसको सहमति नहीं है, उसको नौकरी करने वाला चाहिए, तो फिर हम लोग दोनों विवाह करके फिर विवाह में झगड़े ही होते रहेंगे, है ना। तो इसलिए ऐसी कुछ बातों के विषय में एक दूसरे से जान लेना कि परमेश्वर ने हमको किस दिशा में जाने के लिए बुलाया है और हमारी सोच मिलते हैं कि नहीं, ऐसी कुछ बातों को आपस में बातचीत कर कर जान ले, ताकि आपके विवाह में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, संघर्ष जो है, झगड़े जो है, उसको कम किया जा सके। लेकिन याद रखें कि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति से अगर विवाह कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु दूसरी बातों के विषय में जरूर आप सोच सकते हैं, अपने कलीसिया के प्राचीनों से सलाह ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों से आप सलाह ले सकते हैं, और जरूर उस विषय में प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको और अधिक उसके विषय में बता कर देगा। अंतिम प्रश्न में आ गए हम लोग। इसमें करीबन 2-3 प्रश्न है, मैं इकट्ठे उसका एक एक करके जवाब दूंगा। हाउ कैन वन फॉरगिव समवन व्हेन ही इज बीन फ्रेम्ड और अक्यूज्ड फॉर रॉन्ग बिहेवियर। कोई आपको गलत व्यवहार के लिए, कोई गलत बात के लिए आपको बोला आप दोषी हैं, आप झूठे हैं, आपने ये काम किया, आपने वो काम किया, और आपके मुंह पे कह दे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा दो तरफा बात समझना हम लोग को। ये एक ठेस पहुँचाने बात होती है कि हमें मुझे मालूम मैंने क्या बोला है, मुझे मालूम मैंने क्या किया है,
और सामने वाला जो कह देता है या क्या बोलता है सच में ठेस पहुंचती है, और अक्सर हम ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं कर पाते. वी कैन नॉट फॉरगिव सच पीपल व्हेन वी फील दैट आई एम बीइंग रॉन्गली एक्यूज्ड. और ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि मैं कौन हूं और मैंने क्यों किया है, और सामने वाला जो बोलता है उसको भी शायद थोड़ा संयम रखना है, समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ सामने वाले को जब मैं दोष लगाता हूँ. और ध्यान आपको सोचना है, हम जो कलीसिया के तौर पे जब जीते हैं, एक्यूजिशन दोष लगाने की भावना, ध्यान से सुनिएगा, दोष लगाने का स्वभाव किसका है मालूम है बाइबल में? इसलिए हम जो कलीसिया में हम लोग जो लोग हैं जो शिक्षा देते हैं, हमें बहुत सोच समझ के वाद विवाद प्रेम से बैठ के एक व्यक्ति की गलती के बारे में बैठ के समझाना है, दिखाना है, वचन के आधार पर, भावनाओं के आधार पर नहीं. पहली बात ये हमें सीखना है. भावना धर्म हम कुछ भी बकना शुरू कर देंगे क्योंकि वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है. I don't like that person. I can speak anything what I want, what I don't like. You have to be gentle, you have to be meek, humble, and based on the word of God, speak in a very polite way so that person can understand that where is the person is wrong or right. पहली बात. दूसरी बात, अगर आपको ठेस पहुंच भी गई है, उस व्यक्ति ने बोल भी दिया है, जो अक्सर कलीसिया में होता है, परिवार में भी होता है, रिश्तों में भी होता है, और हम स्वाभाविक तौर पे माफ नहीं कर पाते. वी कैन नॉट forgive naturally, right? हमसे माफ नहीं होता है. जब ऐसे स्ट्रगल आता है तो हमें अक्सर उस प्रभु यीशु मसीह को देखना है जो मुझे और आपने बिना कुछ देखे और समझे क्या किया है. It says you have been set free. अगर आप मूल भाषा में, अगर यूनानी भाषा पढ़ते हैं, forgiveness मिलता है, आपको जंजीर से बांध रखा है, उसने जंजीरें तोड़कर उसको आपको आज़ाद. अगर जब तक माफ नहीं करेंगे, आपने पकड़ कर रखा है, उसे बांध के रखा है. इसलिए माफ करना मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको माफ किया, आपको भी एक दूसरे को माफ करना. मेरे सामने और आपके सामने कोई और चॉइसेस नहीं है, क्योंकि एक ने हमें सारे पापों को, सारे दोष को, सारे जो कुकर्म मैंने और आपने उसके विरुद्ध में किए थे, उसने बेहिसाब मुझे और आपको माफ किया. इसलिए कोशिश करें इसको, आप इसमें एक्सरसाइज करें. दूसरी बात, व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं हर दिन कहीं ना कहीं पाप में, sin can be done and can be exercised in daily life unknowingly, but whenever I try to come out of it through the word I am not able to. मतलब मैं पाप के स्वभाव में गिर रहा हूँ, जितना भी कोशिश करता हूँ मुझसे हो नहीं रहा है. मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, हम अनेक बार अपनी ताकत और बल के आधार पे पाप के स्वभाव से बाहर नहीं निकल सकते. मैंने आज एक शब्द इस्तेमाल किया था, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ विल पावर बट विथ रिलेशनशिप पावर. मैं शब्द इस्तेमाल किया था. जब आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर संबंध में आते हैं, उसके साथ आप वचन में अनुसार बढ़ेंगे, तो रिश्ते में एक ताकत होती है, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं. आपने उसने हमसे पहले प्रेम किया है, उसके आधार पे उस संबंध के द्वारा एक सामर्थ्य आत्मा में आप अपने पाप से ऊपर निकल सकते हैं. इसलिए यूसुफ ने भी क्या कहा, जब पोतीफर की पत्नी पकड़ा था, उसने परमेश्वर के बारे में, मैं कैसे तेरे विरुद्ध में पाप, वो कैसे संभव हुआ? व्यवस्था अनुसार नहीं, संबंध के कारण से. तीसरी बात, मैं प्रोफेशनली बहुत इंटरव्यू दे रहा हूँ, आई एम गिविंग लॉट ऑफ इंटरव्यूज, बट आई एम फेलिंग एंड माय फेथ इज फेडिंग. ये साथ मेरे साथ भी घटता है. मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, मैं भी एक बार मुझे नौकरी नहीं मिली, फिर 5-6 इंटरव्यू मुझे नौकरी मिली. हम सब इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में इंटरव्यू देते हैं, फेल होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वालिफाइड नहीं है, आपके विश्वास की कमी है, या परमेश्वर कुछ गलत काम कर रहा है. जब हम जिंदगी में हारते हैं, जिंदगी में अपने हिसाब से कुछ मिलता नहीं है, तो ये मत सोचिए कि आपका विश्वास कम है या आप हार चुके हैं, उसके लायक नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर छोड़ दिया है, मैं विश्वास शायद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मेरे पापों के कारण से मुझे नौकरी नहीं मिल रही है. ये सब विचारों में जाइए. आप लोग अपना स्किल करें, अपनी इंटरव्यू देने का स्किल तैयार करें, अपनी तैयारी अच्छे से करें, प्रार्थना करो, परमेश्वर सही समय पर सही कंपनी के सामने रास्ता खोलेगा. मेरा भी रास्ता खोला है, इसलिए मैं अनुभव से आपको बता रहा हूँ. आखिरी बात, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, सो व्हाट इज दैट आई एम लैकिंग? स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जो भाई ने बताया, आत्मिक अनुशासन. और यही बात जो भाई जवाब दे, उसमें रिपीट नहीं करूँगा. आप हर दिन इस अनुशासन को बार बार करके उसमें बढ़ेंगे, तो आपकी
आत्मिक जीवन में एक मेच्योरिटी आएगी एंड यू विल लैक नथिंग. ठीक है, इट हैपेंस नॉट ओवरनाइट. एक दिन में नहीं होता, एक रात को नहीं होता, ये दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया है. ठीक है, थैंक यू. ओके सो हम लोग यहीं पर रोकेंगे. जितने सवाल हमारे पास आए थे उसके जवाब हम लोग दे दिए हैं. इफ़ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चंस, आपके पास कोई और सवाल है तो कल दोपहर तक कैंप चल रहा है. उसके बीच में चाय और लंच ब्रेक के बीच में हम लोग सब यहीं पर है. हम तीनों में से किसी से भी आप व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं या फिर साथ में बैठना चाहते हैं, समय निकाल सकते हैं. अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो ज़रूर उन सबको हम लोग जो है कर सकते हैं. प्रार्थना के साथ हम लोग आज के इस सत्र को समाप्त करेंगे. लेट्स bow down our heads and we'll pray. Gracious Heavenly Father, we come to your presence this evening and we want to thank you for yet another day that you have granted unto us, especially for helping us all to gather together in your name here and to learn from your word and to sit underneath you, Lord, so that we can hear from you. Thank you for the blessed experiences that we could all have. We especially want to commit each and every individuals who is present here, Lord, that they may be filled with your spirit. They may start to love you more and more. They may have that deep developed desire to follow you and to live a life that is pleasing to you, Father. As they go through various challenges of their own lives, as they navigate through the conflicts of their own lives, Lord, we pray that you would help them, guide them, encourage them daily so that they will not lose faith, rather be encouraged in you and grounded in your word so that they can build up their lives in your truth and foundation. Lord, we want to thank you for this evening time that we could all discuss a few things. We pray that if there are any questions or doubts in the minds of these individuals, you may help them to overcome it through your word, Lord, and help us this night to have a good sleep so that we can get refreshed and come tomorrow morning to listen to you and to hear from you. We ask all these in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ.